evening, everyone. Tausif Hamid this side. Our esteemed guest speaker has joined us in today's session right now. It's my great pleasure to welcome our esteemed guest speaker, Ms. Tausif Rashid, ma'am. On behalf of entire team, I would like to extend a wholehearted welcome to ma'am. As you know, we are midway through our 10-day online capacity building program. We are thrilled to have ma'am's expertise with us today. With 7 years of experience in addressing psychosocial issues in Kashmir and currently working as psychiatric social worker at the Child Guidance and Wellbeing Center in Government Medical College, Srinagar. I'm sure ma'am will bring a wealth of knowledge and insight regarding the topic to the table. Today, as you know, ma'am will be discussing the crucial topic of gender and mental health in the context of Kashmir. So, without wasting further time, it's now our pleasure to hand over the session to ma'am. Ma'am, over to you. And good afternoon to every one of you. I am Tosif Rashid, and without further delay, we'll start the session. I'll be talking about gender and mental health in perspective to Kashmir. So, if you all, I would like it to be very interactive. If you don't mind, swiping on your cameras, if it is possible for females or males, whoever are the participants, so that we can have a much interactive session. Are the participants? Hello, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. Yeah, so I was like, if it would have been a much interactive session if people will introduce themselves and they'll on their camera, so that we'll try to make it much interactive. Yes, ma'am. Students can put on their mic, but I am not sure about the camera. It can be the interactive Okay, one. Yes, ma'am. okay. Can we just have a brief introduction about like we have Ada, Rafi, Gulshan, and other people around? Ma'am, most of the students are law students from Kashmir Law Okay, College, and yes, there are a few other students who are from various other colleges, but most of them are having the law background. okay, wonderful. So I'll be just briefing you about the mental health scenario in Kashmir. If you talk about right now, we have a huge term like they say gender. They have just broadly defined gender in not just male and female. Right now, we have third gender also. We have transgender people also, especially if you talk in Kashmir also. People are being associating their genders, just not to male and female to third, or they feel sometimes they say we are a male body into the female separate, or the vice versa. Anyways, there's a huge spectrum of male to female transition. And then if you talk about the sociological definition of gender, gender refers to the characteristics of male, female, girl, boy that are socially constructed. Okay, gender is more about a social constructed term, while as the behaviors, norms, and the roles we have associated with such genders, they define somebody as a man or somebody as a woman when we say be man enough or be woman enough about that. While as if you talk about the biological aspect, our genitals, they just differentiate the male, female, or the wider spectrum of the gender. Now, talking about health, if you we can't directly shift to the health, because mental health, that is one aspect or the one component of the health, the overall well-being, the overall health scenario, or the health wheel we have. It involves psychological, it involves social, it involves financial, it involves your physical, emotional, spiritual health, intellectual health. That is all the part of your health. Okay. And if we talk about our social health, involves our friends, our family, our interaction with the neighbors, financial, how we maintain our finances, what is our financial literacy, how we are financially equipped with the knowledge, or how we day to day manage our finances, or the occupational health, like how do I perform at my occupation, at my workplace, with my colleagues, with my subordinates, with my supervisors, or the immediate environment. If you talk about like the physical environment we live in, how much we are very sensitive about our physical environment, where do we put our garbage, or how we manage the immediate environment we are living into in terms of the hygiene we have there. And spiritual, if you talk about, it's like the connection with your nature, with the god, or with whatever the faith you believe. Like some people do meditation, or some people religiously follow whatever religion they are into.
And if you talk about physical health means the aspect of your physical being, how you take care of your body, your hygiene, your organs, because our body is made of a lot of organs and a lot of systems like respiratory system, digestive system, all these systems, these are the parts of our physical health. And if you talk about the emotional health, emotion health involves our um, thought process, how we think, our thoughts, our dreams, our aspirations, our aims, our feelings, our sentiments, our emotions towards a particular thing or a particular person, or how we feel about things. That is the emotional part of the health, if we talk, because it's an entire wheel. Now, coming to the gender and health, see, how do I take my health as a female, or how do I represent myself as my gender and the health? That's a one scenario, one case, or somebody, a male, how his experiences with the health in Kashmir, that can vary, that can have a different experience, because it's again, it depends upon people's experience to the access of healthcare facilities we have in place in Kashmir, be it in the rural setting or be it in the urban setting. Because my female body, that's wired differently, male body, that's wired differently, or somebody who is like trans, or who represents him or herself as a different category in the spectrum of the gender, they can have different health issues, and they are directly proportional to the healthcare facilities they are availing, or the government or non-governmental or say suppose private organizations or the private We can facilities they stop. are availing. We can stop. Hello. Kindly put the microphone off. Shall I continue? Yes, ma'am. Yeah. So I was talking about gender inequality and discrimination. I was initially talking about the accessibility of the healthcare facilities and affordability of the healthcare facilities to the gender. And then that's also like if you talk about women especially say, they say, or if you talk to women whosoever comes to the healthcare facilities, they feel like it's very difficult for us to access or avail such facilities, because what is most of the times that women are not earning, they are not the only earning hands, they have to ask their husbands, their parents, or their brothers, or say suppose partners, if they have to go to ask doctor, they need to firstly seek permission. ठीक है? अगर आपने, if you, are you guys able to understand Urdu language as well? I guess most of the students are. ओके। तो बेसिक सी बात है, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात करते हैं कश्मीर के रिगार्डिंग से, तो हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ 2 सर्विसेज़ में आती है, या तो गवर्नमेंट की आती है या तो प्राइवेट सेक्टर की आती है, ठीक है? लेकिन जब आपको किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना पड़ता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, पहले उनको परमिशन सीक करनी पड़ती है। पहले वो देखना होता है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी एक्सेसिबल है, कितनी अवेलेबल है, ठीक है? आपकी विसिनिटी में है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपके घर के जो एनवायरनमेंट है, आर दे अलाउिंग यू टू अवेल सच फैसिलिटीज, एट द सेम टाइम उसकी जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है वो कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो होते हैं फीमेल्स जो कश्मीर में होते हैं, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। हमेशा ऑल ऑफ द फीमेल्स वी कांट से दैट दे हैव मच एक्सेस टू रिसोर्सेज और मनी टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, दे हैव टू सीक, चाहे इन लॉज के पास उनको सीक करना पड़ता है, या हस्बैंड के पास सीक करना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल पेरेंट्स या किसी और डिपेंडेंट से उनको पैसे भी सीक करने पड़ते हैं, पैसे अलग से होते हैं, और वहाँ आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का वो भी अलग से सीक करना पड़ता है। सो देयर इज अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट और अ ह्यूज डिस्कशन रिगार्डिंग द हेल्थ एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर अ जेंडर। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली होती क्या है मेंटल हेल्थ? अगर हम अभी बात करते हैं ना, जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके के हिसाब से मेंटल हेल्थ का ये मतलब होता है अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर potentially can cope with the normal stressors of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to हर और हिज कम्युनिटी। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, कोई भी ऑन एंड ऑफ कोई डिफिकल्टी है, ठीक है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट डिफिकल्टी आप कूप कर पा रहे हो, आप अपना डे टू डे जो आपका काम होता है, जो डे टू डे आपकी जो अपनी
फंक्शनिंग होती है, चाहे आप कॉलेज में जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, दैट मीन्स आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। आप अपना जो दिन ब दिन का रूटीन जो होता है, यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट, यू आर एबल टू फॉलो ऑन दैट, यू आर नॉट कंप्लीटली शैटर्ड कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू मिस हो रही हैं, या कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि आपका जो है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रहा है। दैट मीन्स कि हेल्दी, मेंटली हेल्दी हम उस इंसान को कहेंगे कि ही इज एबल टू कूप विद दैट स्ट्रेस एंड ही इज एबल टू कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली। प्रोडक्टिवली का मतलब होता है चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो हाउस वाइफ है, वो अपने रोजमर्रा के काम करती है, चाहे वो एक वर्किंग पर्सन है, वो सारी चीजें विद दिस स्ट्रेस कंटिन्यू कर पाता है एंड somehow he is able to contribute to the community in a larger aspect। क्योंकि अगर आप लोग अभी स्टूडेंट्स से आप लोग पढ़ रहे हैं, that means you're also being productive to our community, to our society। ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट अ ह्यूमन, हमारे पास ह्यूमन के लिए एक मॉडल होता है, हम इंसानों को एक मॉडल के थ्रू देखते हैं। हम बोलते हैं जो इंसान है दैट इज अ बायो साइको सोशो बीइंग। ठीक है, हम कहते हैं इंसान सिर्फ नहीं बना है, सिर्फ फिजिकल उसका बीइंग उसका नहीं बना है, इंसान के एस्पेक्ट में उसकी सोशो बीइंग भी आती है, उसके एस्पेक्ट में एक साइकोलॉजिकल बीइंग भी आती है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में उसका क्या आएगा, उसकी एज आएगी, उसकी जेंडर आएगा, उसका जेनेटिक्स आएगा। से सपोज समबडी इज टॉल, somebody is fair, somebody is dark, ये सारी चीजें आएंगी। उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जब उसको गुस्सा आता है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर पाती है, किसी को पसीने छूटते हैं, कोई लाउड टोन में बात करता है, उसका टिश्यू हेल्थ वगैरह। जैसे कि कुछ चीजें हमारे पास जेनेटिकली होती है कि थायराइड किसी को जेनेटिकली हो जाता है, या डायबिटीज जेनेटिकली है कुछ लोगों में, तो ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट में हमारा आएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हम कैसे मेंटेन करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे कॉलीग्स के साथ, हमारे प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल या जिनको हम पर्सनल रिलेशंस कहेंगे, उनमें एक लाइन कैसे हम ड्रॉ कर पाते हैं, हम उनमें एक बैलेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। हमारा सोशल सपोर्ट डायनामिक्स क्या है, लाइक ये से सपोज कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है हमारे साथ, तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम क्या है, मेरे फ्रेंड्स है क्या, मेरे नेबर्स है। जैसे कि हमारी कश्मीरी सोसाइटी में होता है, जैसे कोई गुजर जाता है, ठीक है, यूजुअली कॉमन सेंस होती है फिर कि 4 दिन या 3 दिन वो लोग घर वाले नहीं पकाते हैं, तो कम्युनिटी कभी पकाती है। सो दैट इज ऑल्सो सोशल सिस्टम। या फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारे पास एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें बच्चे डूब गए थे, एंड देन पीपल वेर वॉलंटियरिंग देमसेल्व्स। लोग आ रहे थे, लोग ताजियत कर रहे थे, या लोग जी उनके साथ हमदर्दी कर रहे थे, और दे वर आल्सो सेइंग कि वो बच्चों को वहां से बाहर भी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऑल दैट वाज हैपनिंग वॉलंटरी। दैट मीन्स वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें एक और चीज आती है सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट मीन्स आपकी फाइनेंसेस क्या है, आपके कल्चरली जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे लोगों का रोजगार वगैरह क्या होता है, हाउ डू देयर लिविंग्स, लाइवलीहुड वहाँ का क्या है। अब आती है बात साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, यानी कि जो भी आपके थॉट्स है, आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके इमोशंस है, आपके ड्रीम्स है, आपके एम्बिशंस है, आपके एस्पिरेशंस है, आपके क्या बिलीव्स है, आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या है, आपके कल्चर नॉर्म्स क्या है, और फॉर दैट मैटर आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ या खुद से क्या है। Now coming back to Kashmir and mental health scenario in context to Kashmir very specifically, let's talk about it। अगर हमारे पास जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो करंट डेटा है, करंट डेटा हमारे पास ऑथेंटिक करंट डेटा अभी नहीं है कोई लेटेस्ट, देयर इज नो अपडेटेड ऑथेंटिक डेटा वी आर here to quote, because there are very less studies done on the overall mental health well-being पे। वो बहुत कम लेवल्स पे हुई है। जो लास्ट हुई है बहुत ही एक स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे, और फॉर दैट मैटर कश्मीर लेवल की जो बात करेंगे, वो एमएसएफ ने की थी। मेडिसिन सैन फ्रांसिस ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम करती है, एनजीओ, दैट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन कश्मीर फ्रॉम पास आई बिलीव 25-26 ईयर्स से वो यहाँ काम करती है। तो उन्होंने एक सर्वे किया था, वो सर्वे जो हुआ था वो 2015 का सर्वे है। तो अभी जो हमारे पास करंट कश्मीर लेवल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे अभी हमारे पास करंटली नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी सर्वे को कोट करते हैं। और जिस सर्वे के हिसाब से हमें पता चलता है 45% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उनको वन और द अदर मेंटल हेल्थ स्ट्रेसर कुछ ना कुछ है ही। ठीक है, और जिसमें हाईएस्ट रैंक, जिसमें हाईएस्ट होता है, दैट इज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, अगर हम कश्मीर की बात अगर हम करेंगे, तो यू ऑल नो कश्मीर जो है दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन प्लेस, दैट्स अ प्लेस विच इज हिट बाय कॉन्फ्लिक्ट 1989 से अगर हम बात करें। तो हमारे पास ये भी एक और स्टडी आती है साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी जगह पे किसी मुल्क में अगर कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड हालात रहेंगे वॉर के, कॉन्फ्लिक्ट के, फॉर प्रोलॉन्ग से सपोज 5 to 10 years, तो वहाँ पे जो होती है लोगों की मेंटल हेल्थ जो होती है वो इंतहाई लेवल पे अफेक्ट की जाती है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। दे आर नॉट एबल टू बी हैप्पी, दे आर नॉट एबल टू चेरिश, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर लाइफ द वे द नॉर्मल पीपल एंजॉय। नॉर्मल पीपल मीन्स जहाँ पे पीसफुल कंट्रीज होती है, जहाँ पे पीस प्रिवेल होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजंस, अभी हम अगर हम बोलते हैं कश्मीर में लोग खुश क्यों नहीं हैं, या वन ऑफ द रीजंस, एक कश्मीरी कहावत है कि यहाँ ये हवस मजी परेशानी, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। तो उस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास मुश्ताक मरगूब साहब ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है कश्मीर में। उन्होंने भी 2006 की एक रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने भी देखा कि पीटीएसडी जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, वो बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ कश्मीरी पॉपुलेशन हमारे पास है। एंड दैट इज ऑल्सो वाई दैट इज, वो डिसऑर्डर क्यों है सबसे ज्यादा, उसका ये रीजन है क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे खून रेजी देखी है, कातल रेजी देखी है। फॉर एग्जाम्पल, one or the other person in Kashmir has directly or indirectly been affected by insurgency, by conflict की वजह से, चाहे किसी के फादर की डेथ हो गई, चाहे किसी का हस्बैंड अबडक्ट हो गया, या किसी ने लाइव एनकाउंटर देखा, या किसी ने लाइव बॉम्बिंग देखी, या उसका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व था, कोई फ्रेंड इन्वॉल्व था, कोई नेबर इन्वॉल्व था। सो वन और द अदर वे, we all the Kashmiri population was directly or indirectly affected by these things। and पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ये होता ही है कि लाइक आपको पिछले फ्लैशबैक्स आते हैं उस एपिसोड के, उस ट्रॉमेटिक इवेंट के, आपको बार बार नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, और यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट शॉक कि ऐसा भी हो सकता था या ऐसा भी हुआ है, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट वुमेन ऑल्सो, वुमेन वुमेन फीमेल्स या कश्मीरी मेल पॉपुलेशन का अगर हम बात करते हैं ना, तो डिफरेंट होता है, कूपिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। हाउ हाउ मेल कैन कूप, हाउ फीमेल कैन कूप, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि हर एक इंसान की जो कूपिंग होती है, हर एक इंसान की जो रेजिलियंस होती है, वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक और चीज़ कहा जाता है कि कश्मीर में समटाइम्स वुमेन स्पेशली दे फील लाइक दे आर नॉट एबल टू वेंट दिस आउट। वो बोला बहुत चिल्लाना चाहती है, रोना चाहती है, तो वो चीज़ें देखना चाहते हैं कि वो लोग, वो चाहते हैं कि हमारे पास सेफ स्पेस भी नहीं है वेयर वी वांट टू गिव वेंट व्हाटएवर थिंग्स हैव हैपेंड टू अस। हैपन टू अस मीन्स कि सम पीपल से कि दे हैव बीन, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, उनके स्पाउस के थ्रू या उनके इन लॉज के थ्रू, या कोई ना कोई सोशल प्रेशर है, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली सोसाइटी में या ससुराल में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। दैट इज़ वन ऑफ द reasons they are on a higher level of mental stressors in Kashmir। or for that matter, if अगर किसी की शादी होने वाली होती है तो फिर उसको ये भी स्ट्रेस होता है, अच्छा फिर मुझे ये भी लाना है, वो भी लाना है, ये लाना है, that's also one of the social pressures। or if somebody is very ambitious, if she is 27, 28 or 29 for that matter, and people and her relatives are pressuring her parents कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, इसके साथ शादी कौन करेगा, lot of things are there in which play a role into the mental health। वैसे हमारी कुछ कल्चरल नॉर्म्स होती है, कल्चरल सोसाइटल नॉर्म्स होती है, जो ऑल्सो एक रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे पास कश्मीर में अगर आप लोग देखेंगे, कश्मीर में हमारे पास बहुत ही पोटेंशियल है बच्चों में, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, मगर अगर हम कश्मीर की बात करें, हमारे पास एवेन्यूज़ कश्मीर में बच्चों के लिए बहुत ही कम है, मेल्स के लिए बहुत कम है, बिकॉज मेल्स को हमेशा देखा जाता है दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली एंड दे हैव टू रेज द फैमिली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होता है, दे आर द फाइनेंशियल बैकबोनर्स ऑफ द फैमिली। बट अगर हम देखते हैं क्या है हमारे पास, अगर बच्चा यहाँ पे 21 साल का हो, 21 साल का हो, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होती है, 22 23 पे उसने मास्टर्स करा होता है, इवन दो यहाँ पे हमारे पास बच्चे पीएचडी करके है एट द एज ऑफ 26 27, दे आर नॉट सेटल फाइनेंशियली, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो एवेन्यूज़ है वो बहुत ही कम है। जब इंसान बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होता है, अगर हमारे पास बच्चे नेट सेट जेआरएफ होते हैं, एसआरएफ होते हैं, पीएचडीज होते हैं, एंड देन दे डोंट हैव दैट डिग्निटी वाला जॉब, they don't have that worthy job, they feel like they are contributing or they are earning the way they should earn। so वो उस बेचारे के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है सोसाइटी में उस चीज़ के साथ कूप करना, क्योंकि कभी कभार क्या उसको कहते हैं रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को कहते हैं अब तुमने क्या उखाड़ लिया लाइफ में। बिकॉज अगर मैं 12th पास हूँ, मैं कहीं पे सेल्समैन हूँ, मैं भी वही 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ, अब तुम कुछ ऑनलाइन जॉब करो, तुम
भी 15-20 हज़ार डिफरेंस, तुमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई क्यों करी, या तुम तो अभी सेटल भी नहीं हो, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हो रही, व्हाट आर यू नो डूइंग विद योर लाइफ, अभी तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है. सो व्हाट आर these factors are adding on to the mental health aspect. These factors are adding to the pressure of having अच्छी खासी mental health जो इंसान की होनी चाहिए, वो इन चीज़ों से, इन फैक्टर्स की वजह से नहीं हो पाती है. तो हम अगर हम कहेंगे कि 1947 का जो ये पार्टीशन है, इंडो पाक का जो ये डिवीजन था, दैट इज आल्सो हैज कंट्रीब्यूटेड, जो कश्मीर में कश्मीरियों की हेल्थ है उस पर भी असर पड़ा है. इंसर्जेंसी जो कंटिन्यूसली है प्रेजेंट से 1989 से लेके प्रेजेंट तक, दैट इज कंटिन्यूसली वन ऑफ द फैक्टर्स. क्योंकि उससे एक ही चीज़ नहीं हुआ कि वी लॉस्ट ब्लड शेडिंग हो गई, इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारा जो सोशो पोलिटिकल एस्पेक्ट था हमारी सोसाइटी का, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ. हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई. दीज थिंग्स हैपेंड. बट अगर अभी बात करते हैं, अभी हमारे पास कुछ स्टडीज़ है कि एनजीओज़ ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ काम किया है. एनजीओज़ ने भी बहुत सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए लाए हैं. अगर हम देखेंगे कुछ एनजीओज़ यहाँ पे काम करती है, जैसे यूनिसेफ काम करती है, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ स्पेसेस. सेफ स्पेसेस, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस भी इनको कहा जाता है. जैसे हमारे पास गवर्नमेंट में होता है आंगनवाड़ी या आशा सेंटर, सिमिलरली हमारे पास कुछ एनजीओ जो काम करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड बच्चों के खेलने कूदने के प्लेटफॉर्म्स वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं. उनको वहाँ पे बेसिक मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, टेबल मैनर्स के बारे में बताया जाता है. सिमिलरली हमारे पास गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है. गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स की अगर आप बात करेंगे, जो ये हमारे पास आईसीडीएस है, दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दाल सेंटर या दाल वाला सेंटर, नो, दे ऑल्सो प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट लॉट ऑफ सोशल इश्यूज और द हाइजीन ऑफ द चाइल्ड और हाउ द चाइल्ड हैज़ टू बी रेज्ड, उसके बारे में बताया जाता है. और फॉर फीमेल अडोलसेंट्स के लिए भी बताया जाता है बहुत सारी स्कीम्स अडोलसेंट्स के लिए, अबाउट देयर पीरियड्स, अबाउट देयर हाइजीन, अबाउट देयर हेल्थ ऑल्सो. सो दीज आर द इनिशिएटिव्स. एंड स्पेशली गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है, गांधरबल में, पुलवामा में, श्रीनगर में. सो दीज थिंग्स आर अपकमिंग दी initiatives of क्या कहते हैं government or non-governmental organization for boosting the mental health of the person. Now if I talk about specifically, if I talk about determinants of stressors in females, तो पहला हमारा क्या था, हमारा पहला है social environment, सोसाइटी में जो हमारा immediate environment है, how this female child is being treated, इस पे कौन कौन से sanctions लगाए जाते हैं, how society sees this female child, because when she is born still we have that notion, अच्छा अभी बेटी होगी, दूसरी बेटी होगी, तीसरी बेटी होगी. सो लोगों के जो मुंह है वो उतर जाते हैं, दे मेक वेरी बैड फेसेस, और जो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स भी करते हैं, अरे काश अब तुम्हारा बेटा पैदा हो जाता, एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड देन हाउ सोसाइटी शेप्स, घर में फिर उनका वैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, उनको कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है घर में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रेसर्स इन फीमेल्स. दूसरा है हमारा कल्चर नॉर्म, हाउ आवर सोसाइटी इज इट स्टिल जजिंग वुमेन द वे इफ शी इज वेरी एम्बिशियस और शी वांट्स टू फर्दर स्टडीज, और इफ शी प्रायोरिटाइज her career and sometimes she wants to pause the family or the marriage, वो चीज़. तीसरा one of the very important factors is poverty, यानी कि हमारे पास financial resources क्या है, हमारे पास इकोनॉमी कैसी है, हमारे घर में हमारे पास how much my father is making, and is he able to provide me good education, is he able to provide and compensate my day to day needs, वो सारी चीज़ें. Sometimes क्या होता है, gender based discrimination भी होता है. It's not only about at घर पे, sometimes it's at school, sometimes it's at some college, sometimes it's at some universities also. Over the period of time it has decreased in Kashmir, I understand and I know, but still there are some places there women has been judged and gendered, बिकॉज समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है. एंड जो सुपरवाइजर्स होते हैं और जो पीआई होते हैं, दे फील लाइक कि शायद फीमेल शी कांट डू इट, शी कांट गो टू फील्ड, शी कांट मैनेज इतना सारा वर्क, और शी कैन नॉट होल्ड इट, इसमें शायद उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, शी विल बी गुड इन रिसर्च और डेटा एनालिसिस, फील्ड पे डेटा गैदर करना, ये चीज़ें. और पीयर प्रेशर की भी बात आती है, हाउ द पीयर प्रेशर इज शेपिंग आवर एडोलसेंट पॉपुलेशन स्पेशली, बिकॉज पीयर प्रेशर का क्या मतलब होता है, जो हमारा इमीडिएट ग्रुप होता है, जो हमारा इमीडिएट पीयर सर्कल होता है, जिसमें हम रह रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, इफ आई एम अ टीनेजर, आई एम, मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ से श्रीनगर मतलब अनंतनाग से श्रीनगर भेजते हैं फॉर माई 11th-12th स्टडीज, फॉर माई एंट्रेंस कोचिंग, and they pool all these money, my father's hard earned money. But when I go to these Rajbagh or these Paripura
tuition centers, there is a different lot of children, and they can be involved into a lot of activities like शाम को बैठना कहीं पे कॉफी पीना और CCD जाना और you know a lot of times time waste करना on mobile social media और just hanging around each other या hangouts के लिए, तो उसका प्रेशर भी हम पे कितना पड़ता है, like is my environment, my family environment or my goals and why I have come to Srinagar or for that matter anywhere for studies, is that aligned, and is my friend circle aligned with my aspirations, with my goals, what is my immediate peer pressure adding to my personality, वो बहुत ज़्यादा affect करता है. At the same time बुलिंग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, द वे आई ड्रेस, कहीं मैं ऐसा ड्रेस तो नहीं कर रही हूँ कि जो इट्स एक्सट्रीमली आउट ऑफ द सोशल फैब्रिक, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस आई लिव, और sometimes am I being bullied for the weight I have put on my body or the scars I have on my face or the pimples I have on my face or the thin lining of my hair. I mean all these are adding to the स्ट्रेसर्स. और समटाइम्स क्या हो जाता है हमारे साथ, हरासमेंट भी बहुत बार हो जाती है. इफ़ यू कम्यूटिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आप कम्यूट करते हो डे टू डे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हाउ आर द पीपल, आर दे अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना स्पेस छोड़े, कहीं अननेसेसरली अनवांटेड टच तो नहीं फील करवाया, या किसी ने आपको रिमार्क्स तो नहीं पास करे. बिकॉज व्हाट इज इट अबाउट कि फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन सेज नो शी इज नॉट कंफर्टेबल in making a relationship with someone or being emotionally involved in somebody's life, sometimes क्या होता है, जो आगे वाला जो पर्सन होता है वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो उसको ऑनलाइन भी हरास कर रहा होता है, ऑनलाइन भी स्ट्रोल कर रहा होता है, ऑनलाइन भी इसको ढूंढ रहा होता है या स्टॉक कर रहा होता है, इसके लाइक कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ें लाइक कर रहा होता है, इसके पोस्ट वगैरह ट्रोल कर रहा होता है इसको ऑनलाइन भी, और इसको स्टॉक कर रहा होता है, कहाँ इसका घर है, स्टॉप कहाँ है, ट्यूशन कहाँ है, कहाँ रहती है, कंटिन्यूसली ट्राइंग टू हरास हर. तो वो चीज़ें भी होती है. और समटाइम्स अल्लाह ना करे, लॉट ऑफ आर फीमेल और ऑफ आर female students, they are prone to sexual harassment also. Sometimes somebody sends them some nude pictures or some vulgar pictures also. So these things can happen, these things can be stressors in females. Relationship issues भी females में होते हैं, obviously males में भी होते हैं, but right now I'm specifically talking about females. So sometimes it's not working about working between two people, and then how much they hold to each other, how much toxic relationships can affect a person, वो चीज़ें भी इसमें आ जाती है. और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज फैमिली. फैमिली का बहुत ही इंतहाई बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारी कोपिंग स्टाइल पे, हम अपने में कितना स्ट्रेस ले पाए उसमें फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है. अगर हमारी फैमिली डिसफंक्शनल है, डिसफंक्शनल मीन्स कि अगर हमारी फैमिली में दिन भर आए जाते रोज़मर्रा झगड़े होते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती है, और फॉर दैट मैटर हमारी मदर की और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी नहीं बनती हैं, देन फिर ऑन एंड ऑफ गाली गलोच होती है या फाइट्स होती है, और this is going to affect the mental health of the person living in the house. वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. एंड या पेरेंट्स आपस में बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, पेरेंटल डिस्कॉर्ड है, पेरेंट्स में आपस में बनती नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट it's always going to affect the children in the house and especially the females in the house, and they feel like is this the right way to डील विद फीमेल्स. क्योंकि अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपकी मदर पे कोई हार्ट उठाता है, चाहे आपके फादर उठाते हैं, चाहे मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स उठाते हैं, या कोई बुरा बुरा चीज़ उसको कहते हैं, तो फीमेल थिंग्स की ओके दिस इज़ माई फेट, दिस इज़ गोना हैपन टू मी ऑल्सो, और दिस इज़ द वे सोसाइटी ट्रीट्स अ वुमन. तो उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन सा बनता है, एंड दे ऑल्सो फील हेल्पलेस एट द सेम टाइम. दे आर नॉट एबल टू हेल्प देयर मदर्स, और दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट कि हाउ माई फादर विल talk to her, or how these things can be resolved, and am I going to be treated the same way my father is being treating my mother. Or sometimes what happens, जो हमारे पास जो मदर होती है वो फिर मदर अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती है, या अपना जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी फीमेल चाइल्ड पे भी निकाल सकती है. Social media, that is also one of the stressors, stress factors in this upcoming generation, because what is with us right now, is with us कि we're not living in the moment. जो moment है, for example हम कहीं पे जाते हैं, we want to cherish, we want to enjoy that moment or that food, but before we cherish and enjoy that moment, that food, we always have now a norm or habit, just clicking the photo and then uploading on Instagram, on WhatsApp, on Facebook, continuously जो 4-5 सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं उन पे चढ़ाना, फिर देन वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन राइटिंग द कैप्शन, हमने वो कर लिया, एंड देन वी आर नॉट लिविंग द मोमेंट. फिर हम वेट करते रहते हैं इस पे कमेंट्स क्या आएंगे, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किसने हार्ट भेजे, कितनी लाइक्स आए, कितने व्यूवर्स आए. तो एक कॉन्टिन्यूस इसमें हम रहते हैं
like people should aspire her, or people should validate our emotions, or people should validate and see, तभी शायद हमें खुशी और चैन आएगा, सुकून आएगा, when people see me happy and doing a lot of things or enjoying the stuff I am doing. जैसे कि कोई चीज़ है, for example now I saw the friend of mine, she is having cozy coffee at Taj Vivanta, ठीक है, उसने ये चीज़ कर लिया. At the same time now I am feeling jealous. Okay, fine, ये Taj Vivanta गई, I might have to go to some other fancy restaurant, so that I'll also fulfill my grandiosity, I'll also fulfill my ego, I'll also satisfy my ego. Okay, I'm also in a state of mental health, mental and financial well-being, that I can also go to these places. But why are we doing all these things? Can I not live this moment within myself and the people they are around? For example, my spouse or my friends, whosoever were there in my with me that time. But हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है कि we just want to upload. It's good sometimes to share a lot of stuff you're doing, but at the same time it's not a good practice when it becomes a habit to share every on and off stuff you do in your life and put it on social media, because you are giving people an access personal life to your very special moments. And then it becomes an automatically in your head कि like okay, इस पोस्ट पे मुझे 10 कमेंट्स आए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू डू समथिंग एल्स जिससे मुझे 20 या 40 और कमेंट्स या जो वायरल मेरी रील कुछ हो जाए. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन कश्मीर राइट नाउ. एंड ऑल्सो देयर इज अ sexual abuse की भी बात अगर करेंगे, that is also very common these days. The relationships we are seeing right now with the new generation, they are not confined to the emotional relationships, they are getting into physical intimacy also. And then there are times where the partner, he or she, does not agree to marry each other, and then they have other repercussions also. So these are some of the basic stressors if you talk about in Kashmir, in the female population. So if I talk about some basic common psychiatric disorders in female, there are premenstrual dysphoria disorder. This is when it happens like when the person is in teenage, and then she's feeling she has got her periods, and she is in that a sort of identical crisis with herself, and she's having terrible pain. At the same time she's having terrible mood swings. Sometimes she's very happy, she's very high happy, and at the same time she's very angry. So these things happen in this disorder. At the same time, mood disorder is also one of the common disorders in females. It is related to the hormones also. Anxiety disorders, that's also common. And obsessive compulsive disorders, that's also one of the common disorders in Kashmiri female population, especially female population in Kashmir. We see in the hospital settings that they have a obsession with washing their hands. They continuously wash their hands, or they have this obsession and that they want to do the cleaning all the time. Even they have cleaned, but they feel like okay, अभी भी थोड़ी सी गंदगी रह चुकी है, या फलाना ने बर्तन धोए नहीं, मुझे उसके बर्तन धोने से अच्छा नहीं लगता है, until and unless I don't wash the utensils myself. Psychosis है, या eating disorder है. Deliberate self harm, this is very common. Deliberate self harm होता है, अगर आप देखेंगे ना किसी की रिस्ट पे ब्लेड्स के कट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेड्स के कट्स होते हैं, दैट इज़ अ डेलिबरेट सेल्फ हार्म, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. और सब्सटेंस मिसयूज़ करना, फॉर एग्जांपल दवाई बहुत ज़्यादा खा लेना, कैसे कि मुझे सिर में दर्द हो गया, खा ली दवा. या फॉर एग्जांपल मुझे लगना कि मुझे दांत में दर्द होने वाला है, तो दांत की दवाई पहले खा लेना. या मुझे लग रहा है नहीं, मुझे उल्टी आएगी, उल्टी की दवाई पहले खा लेना. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स इन कश्मीरी फीमेल पॉपुलेशन. एक और चीज़ है सुसाइडल टेंडेंसी. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपने घरों में भी सुनते हैं. कश्मीरी कहावत होती है, वो एक स्लैंग जैसा, मैं जाने मानुस पर वो मारा पान, और आई वांट टू सुसाइड within jealous what, or sometimes they actually do it. वो ऊपर स्लैब पे चढ़ जाते हैं या किसी दरिया के किनारे जाते हैं, दे वांट टू सुसाइड. और या बहुत ज़्यादा बाहर उन्होंने अटेम्प्ट भी सुसाइड किया होता है, स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाली होती है. और एक और चीज़ है पोस्टमार्टम डिप्रेशन. पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी ये फीमेल्स में कॉमन है. जब उनके यहाँ बेबी पैदा होता है, स्पेशली जब उनका पहला बेबी पैदा होता है, दे फील लाइक कि सारा जो अटेंशन है, सारा जो केयर क्या कंसर्न है, वो बच्चे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है. स्पेशली उनको लगता है मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दे नॉट इनटू मी. उसको लगता है कि मैं बच्चे कैसे पालूँ, मेरे को स्लीप डिप्राइव्ड है, मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे पेन भी है, मेरा हेयर लॉस हो रहा है, हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, मैं बच्चे का क्या करूँ. सो शी इज़ जगलिंग इट इनटू ऑल दीज थिंग्स इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन.
ओके, नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टॉक अबाउट दिस कि हम लोग कूप कैसे करते हैं कश्मीर में, स्पेशली स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन कैसे कूप करती है अगर स्ट्रेस है, अगर डिप्रेशन है, अगर मूड खराब है, अगर दिल मलूल है। सो व्हाट डू दिस कश्मीरी पॉपुलेशन डू, वो क्या करती है स्पेशली फीमेल्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इफ़ यू गाइज वुड हैव बीन हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली दादी नानी जिनके घर में होंगे फीमेल ग्रैंड मदर्स, तो यूजुअली उनका एक पैटर्न होता था, वो नमाज पढ़ने जाते थे। If I talk about mine, they used to say कि इसको सो दरगाह, हम दरगाह जाएँगे नमाज़ पढ़ने, और हम खानका जाएँगे नमाज़ पढ़ने, और आज फलाना जगह जाएँगे नमाज़ पढ़ने। What is that नमाज़ पढ़ना या आस्तान पे जाना? It was more about they used to go there, they used to went out, and जो इनकी लैंग्वेज में होता है ना कि जो भी हमारे हाजात है या जो भी हमारे कंसर्न्स है, जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, इनको लगता था कि हम वहाँ वेंट देंगे और जो अर्जी है यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उस पे साइन ऑन हो जाएगा, वो आगे पास हो जाएगी, ठीक है। they used to have that faith, belief in themselves कि I need to vent it at a very pious place and I just want things to get done, I just want to vent it out। रिलीजन बहुत रिलीजन का हमारा माशाल्लाह, आई एम रियली बीन एम कश्मीरी मुस्लिम, सो इट्स वेरी गुड कि रिलीजन पे होल्ड होना, या बहुत सारे लोग इंक्लाइन हैं नमाज की तरफ, या कुछ जिक्र अज़कार पढ़ते हैं यहाँ पे, या कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग। सो दिस इज़ वन ऑफ द कोपिंग स्टाइल्स, एंड स्पेशली अगर हम देखेंगे थोड़ा अर्लियर पॉपुलेशन में अगेन वापस से है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टन कल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी लोग बहुत ज़्यादा वेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा होगा, किसी की मॉर्निंग होती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ डेथ होती है, फिर हम देखते हैं कि कोई इंसान जिसका कुछ सिमिलर लॉस होता है, किसी ने अपने आप को किसी ने अपने अपने को खोया होता है, और हु इज़ गॉन थ्रू द सिमिलर फेज, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता है, एंड देन ही सेज कि आई कैन रिलेट टू दीज थिंग्स एंड ही हैज़ अ सिमिलर एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। और फॉर एग्जांपल मैरिजेस, कश्मीरी औरतों के लिए, खवातीनों के लिए, स्पेशली स्पेशली द पीपल हु पॉपुलेशन हु आर मैरिड, दे व्हाट दे से और व्हाट दे फील लाइक कि आज मेरे कज़न की शादी है, आज मेरे ब्रदर की शादी है, मुझे 5-6 दिन घर पे काम नहीं करना पड़ेगा, आई विल हैव द लिबर्टी टू गेट न्यू क्लोथ्स, आई विल हैव द लिबर्टी कि मेरे हाथों पे मेहंदी भी मैं लगा सकती हूँ। सम पीपल से कि हम पार्लर भी जाते हैं, या हमारे बच्चों के लिए भी नए कपड़े आते हैं। फिर 2-3 दिन क्या होता है, हमें ऑफ मिलता है, व्हाटएवर आवर स्ट्रेस इज, इमीडिएट स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में है। फॉर एग्जांपल मेरे को हस्बैंड के साथ इशू है, कोई चीज़ है, तो उस चीज़ से मुझे एक अलग स्पेस मिलती है, मैं यहाँ पे गाती हूँ, नाचती हूँ, या तुम मकनारी वगैरह हम बजाते हैं। सो दैट इज़ अ रिलैक्सिंग फैक्टर फॉर दैट पर्सन। वो कहती है एटलीस्ट 2 दिन गम दफाई हो जाए, यानी कि 2 दिन के लिए एटलीस्ट माई स्ट्रेस, माई वरी, दैट इज डिस्पेयर हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट। और फॉर एग्जाम्पल हम वेंट आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कोई बहुत ही क्लोज, हमारी कोई कज़न क्लोज होती है, या हमारा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है या फ्रेंड होती है, तो हम उसके पास वेंट आउट देखते हैं कि लुक आज मेरे घर पे ये एपिसोड हो गए, और आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। और फॉर दैट मैटर सजेस्ट भी ना करे, एटलीस्ट वी फील लाइक हाँ जी हमारा वेंट आउट हो गया, हमारा जो दिल है उसमें जो बार था वो कम हो गया। दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन वेज ऑफ कोपिंग इन कश्मीर। एक और चीज़ होता है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म में होता है, इंसान को लगता है मेरे साथ, वो डिनाइल मोड में होता है, उसको लगता है मेरे साथ ये चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है, वो भागता रहता है, वो चीज़ों से भागता रहता है। से सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम, विद माय हस्बैंड, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, आई टेक अ ब्रेक, ऐसे कि नहीं ठीक है मैं 2 साल पढ़ाई कर लूँगी, ठीक है जी, मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मैं जॉब किसी दूसरी प्लेस पे शिफ्ट कर रही हूँ, उन्हें डिफरेंट स्टेट में जा रही हूँ, ठीक है, स्टेट एज इन कि मैं दिल्ली जा रही हूँ जॉब करने 2 साल, बट आई एम नॉट रिजॉल्विंग द इमीडिएट इशू, ठीक है। एवरी टाइम दैट इशू हैज़ टू बी डिस्कस, एवरी टाइम दैट थिंग हैज़ टू बी डिस्कस बिटवीन द कपल्स, वो लोग भागते हैं एक दूसरे से, वो कहते हैं ठीक है मेरी मीटिंग आ गई, या ठीक है मुझे फलाना जगह जाना है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। वो उस चीज़ से भागते हैं, रास्ते ढूंढते हैं उस चीज़ को डिनाई करने के। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक भी सुनती है, हमारे पास पॉपुलेशन है कश्मीर में जो के पॉप सुनती है, जो और फॉर दैट मैटर हिंदी अंग्रेज़ी गाने जो भी है, वो सारी चीज़ें वो सुनते हैं। बिकॉज़ अगर आप लोग भी देखते होंगे हमारे अभी इर्द-गिर्द माहौल में, यू विल सी पीपल विद बिग बिग हेडफ़ोन्स इन देयर ईयर्स, एंड फिर वो चलते रहते हैं, दे आर इनटू देयर ओन वर्ल्ड्स, तो वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिसएसोसिएट करते रहते हैं वर्ल्ड के साथ, और फॉर दैट मैटर दे फील मोर प्लेज़र इज़ इन द म्यूज़िक रादर इनटू द करंट लाइफ़ अभी जो उनकी है।
some people do, what they do is that they overreact, they overeat, sorry, they overeat means कि उनको समझ नहीं आ रहा अब मैं इस चीज़ का प्रॉब्लम क्या निकालूं, तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज अ पर्सन जिसको ऑफिस में 2 बजे मीटिंग है सर के साथ, एंड शी हैज़ प्रिपेयर्ड हर प्रेजेंटेशन, बट स्टिल शी इज़ नॉट श्योर कि इज शी डूइंग द राइट थिंग विद इट और नॉट। बट व्हाट डज शी डू, शी कम्स टू ऑफिस, चाय, ठीक है, एक बार पी ली, फिर उसके बाद कुकीज़ ऑर्डर कर लिए, फिर उसके बाद पेस्ट्री ऑर्डर कर ली। शी इज़ जस्ट वरीड, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू ओवर ईट, ताकि जो उसका जो स्ट्रेस है वो कहीं न कहीं से बाहर निकल आए, कहीं न कहीं से चैनलाइज़ हो जाए। तो कुछ लोग कंटिन्यूअसली 1-2 दिन स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये चढ़ाते हैं, स्टेटस चढ़ाते हैं, दे गिव वेंट ऑन सोशल मीडिया, कुछ ऐसी सैड रील्स बनाएंगे या कुछ ऐसे सैड इमोजीज बनाएंगे, आई एम फीलिंग लो, आई एम डिप्राइव्ड, और ऐसे सैड सॉन्ग्स अपलोड करते हैं अपने स्टेटस में या अपनी उस रील में जिसमें वो अपना फोटो भी या अपना वो वीडियो उठाते हैं, एंड देन दे शो द वर्ल्ड हाउ दे आर कूपिंग, और दे शो द वर्ल्ड लाइक हाउ दे आर फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स दैट टाइम। Okay. I guess I just have 2 minutes, so I'll try to wrap up within 2 minutes. Okay, I'll just talk about certain things about anxiety and how to control anxiety, because anxiety is also one of the commonest disorders or mental health concerns in Kashmir for our younger population, and it's both in males and females. They are very anxious. And what is it? Anxiety. Anxiety, according to American Psychological Association, is an emotion characterized by feelings of tension, worries, thoughts, and physical changes like increase in blood pressure. ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है एंजाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें उस चीज़ का डर होता है, उस चीज़ का खौफ होता है जो सिचुएशन अभी हमारे पास आई नहीं होती है, विच इज़ अबाउट टू अराइव अस। इट हैज़ नॉट हैपन टू अस, इट इज़ गोना हैपन टू अस, इट इज़ गोना अराइव अस। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें पहले ही सोच के रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अच्छा पेपर किया है, बट स्टिल आई एम वेरी वरीड, वेरी एंशियस, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, 85 अबव आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे फिर क्या होगा, अगर आएंगे फिर क्या होगा, फिर मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, फिर मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या होगा, फिर मेरे टीचर्स का रिएक्शन क्या होगा। कंटिन्यूअसली आई ट्राई टू बिल्ड अ प्रेशर विद इन माई बॉडी कि अब आगे इस सिचुएशन में मैं कूप कैसे करूंगा, एंड हाउ अदर पीपल आर गोना रिएक्ट, एंड देन हाउ आई एम गोना रिएक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है एनजाइटी में। एनजाइटी से क्या होता है, एनजाइटी आपकी जो एकेडमिक जो होता है या करियर की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर अफेक्ट करता है। एनजाइटी आपकी सोशल रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट करता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, आप दूसरे इंसान को भी बार बार पूछते रहते हो, अच्छा यार अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, अच्छा फिर क्या होगा, फिर पापा ऐसे बोलेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, यू आर बीन ट्राइंग टू शो दैट पर्सन कि आप सोशली और इमोशनली बहुत वीक हो, वो चीज़ उसमें आ जाती है। फिजिकल हेल्थ भी आपकी अफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें हार्ट की पैल्पिटेशंस बढ़ जाती है, आपके हाथों से पसीना छूट जाता है, आपके माथे पे पसीना आ जाता है, आपके चेहरे पे रैशनेस आ जाती है, रेडिशनेस आप चेहरे पे आ जाती है, एंड इट्स गोना अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आप बार बार उस सिचुएशन की तरफ सोचते रहते हैं, यू कीप ऑन जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब रिजल्ट आने वाला है 29 को, अब क्या होगा, अब क्या होगा, या फॉर दैट मैटर मेरा पेपर अच्छा नहीं हो गया इंग्लिश वाला, अब क्या होगा, या घर वाले तब कैसे रिएक्ट करेंगे। सो यू आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट इन टू द नेगेटिव थॉट्स विच आर गोना ऑब्वियसली हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। So, if we talk about some common symptoms of anxiety, they are sleep में trouble आपका हो जाना, not being able to relax, जहाँ पे आप हो वो जो environment है, वो जो movement है, उसमें आप chill, happy, enjoy नहीं कर पाते हैं, being unable to manage और stop worrying, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते, आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, आप नर्वस फील करते हैं, और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे नहीं कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी। Okay, so how can we help, to minimize anxiety? How can we help to control anxiety? उसमें क्या आता है, पहली बात कैफीन जो होता है वो बहुत कम करना है, या अल्कोहल है वो छोड़ देना है, एंड देयर इज एन ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ऑलवेज हैविंग एन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ की there are gonna be situations where you feel low, or there are gonna be situations where not that so good, because life is a roller coaster. Life cannot be always sunny, it can be rainy sometimes sunny. It's all that I have to prepare myself for a lot of seasons which the life throws on me.
एक और चीज़ है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज, वी ऑलवेज से टू द यंगस्टर्स स्पेशली यंग वुमेन, काइंडली इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। उसमें आपका एक्सरसाइज आता है, उसमें आपका वॉक आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स आप अच्छा खासा पानी पीजिए, 6-7 गिलास पानी एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है, एंड इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, उसके लिए भी पानी हाइड्रेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Take time to relax, just tell yourself everything will be fine, I just need 10-20 minutes. Read some good book which helps you to you know take a pause from life or worries, and if even if you want to hear some good music, just do that and have a good proper sleep of 7 to 8 hours, वो भी बहुत ज़रूरी है। And if all these things, if all these minute tips like breathing exercise, relaxing exercise, all these things aren't helping you out, or any motivational video you watch on YouTube, or somebody's biography or autobiography of some person who has coped or dealt with anxiety, all this is not helping you out. So you guys have to take a professional help. Professional help means you have to consult a psychiatrist or a clinical psychologist for proper counseling, and talking about your symptoms, how long you guys have been going through, struggling through, ये सारी चीज़ें बैठ के बात हो सकती है इन चीज़ों के बारे में। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई नीड टू टेल यू, इफ़ एनी मेंटल हेल्थ स्ट्रेसर, जिसके बारे में हमने बात करी, जैसे कि नींद अच्छे से ना आना, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, बहुत हाथों पैरों से पसीना निकलना, पैल्पिटेशंस हार्ट में बहुत ज़्यादा होना, या लगना कि दिल ज़ोरों से बहुत धड़क रहा है, या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूअसली स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, अगर ये सारी प्रोसेस को एटलीस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, देन दैट पर्सन रियली नीड्स टू सीक अ मेंटल हेल्थ हेल्प, और प्रोफेशनल से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास होती है सेल्फ हार्म की, जो हाथ पे जो ये मार्क्स है, कट्स है, या अपनी स्किन पील करना, अपनी स्किन खाना, या अपने बाल बाहर नोचना, बाहर ऐसे नोचना, या कंटिन्यूअसली रोना, या कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहना अपनी स्टडीज़ में, अपनी डे टू डे लाइफ में, ऑल दीज सिम्टम्स आर सेइंग दैट द पर्सन इज नॉट well, the person is not psychologically, the person is not mentally, that person needs help। ठीक है, वी हैव टू कम आउट ऑफ द टैबू की जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ टैबू अटैच है कि ये तो शायद पागल है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जितनी इंपॉर्टेंट मेरी फिजिकल हेल्थ है, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी फिजिकल वेलबींग है, उतनी ही इंपॉर्टेंट मेरी मेंटल वेलबींग है, क्योंकि मेंटल वेलबींग जो है वो पिलर है मेरी ओवरऑल वेलबींग का। अगर मेरी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मेरी एनजाइटी की लेवल इस हद तक है कि अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ, आई प्यूक आउट, मेरे को वॉमिटिंग आती है, या मेरे को कंटिन्यूअसली पेन रहता है स्टमक में, मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है। सो how it's a high time that I have to prioritize my mental health. So if again now if I talk about mental health disparities means ki what are the barriers, what are the obstacles to avail such mental health facilities। पहले होता है lack of available resources। पहले कि मेरे को पता ही नहीं है कि अच्छा is there a proper facility where I can seek help फ्रॉम प्रोफेशनल, वो नहीं पता होता है, वो लैक होता है। दूसरा चीज़, अगर वो पता चल गया मुझे वो कहाँ है, लेकिन शायद मेरे पास वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या बहुत दूर है, या आने जाने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा, और फॉर दैट मैटर मेरे पास किराया भी नहीं है वहाँ जाने का। तीसरी चीज़ है लैंग्वेज का ही बैरियर है। आई स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, दैट पर्सन इज़ नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है बिलीव दैट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट डजंट वर्क, कि मुझे लगता है मेंटल हेल्थ का अगर मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी शायद ये काम ही नहीं करेगा, शायद काउंसलिंग से कुछ होगा ही नहीं, और फॉर दैट मैटर शायद मैं दवाई पे ही डिपेंडेंट हो जाऊंगी, अगर मैं दवाई छोड़ दूंगी फिर ये और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एंड वी ऑल्सो हैव लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ऑब्वियसली बात है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, कि जब तक हमारे पास फाइनेंशियल ये नहीं होती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, तो हम अपना इलाज कैसे कर पाएँ, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है हमारे पास। स्टिग्मा इन माइनॉरिटी पॉपुलेशंस, अभी भी कहीं ना कहीं हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन में अभी भी स्टिग्मा है कि अगर स्पेशली अ फीमेल गोज टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ काउंसलर, दे फील लाइक कि शायद इसको कुछ पागल कोई बीमारी है, इसका कुछ इलाज चल रहा है, अब इससे शादी कौन करेगा, अब तो ये पागल है, पता नहीं वहाँ ससुराल में भी क्या करेगी, और फॉर दैट मैटर अपनी लाइफ कैसे सुधारेगी या रहेगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ फॉर अ वुमन, फॉर अ फीमेल जेंडर टू अवेल अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, ये भी होता है। और समटाइम्स हमारे पास फिर वहाँ पे हमारे पास उस फैसिलिटी में या उस सेंटर में और उस
जगह पे कभी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है ऑन द बेस ऑफ आवर कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज पे, और द वे आई ड्रेस अप, द वे आई गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड हाउ द डॉक्टर टॉक्स टू मी, हाउ ही हैज़ दैट मेंटल बैरियर टॉकिंग इन टू मी, और बीइंग जजमेंटल और स्टीरियोटाइपिंग में, उस हिसाब से कह सकते हैं। टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क और चिल्ड्रन और फ्रॉम फैमिली, हमारे पास कितना टाइम है कि हम अफोर्ड कर पाए कि लाइक इफ से सपोज इफ आई एम वर्किंग इनटू 9 to 5 का जॉब, और कंटिन्यूअसली मेरे पास जॉब भी है, मेरे पास घर का भी बैलेंस करना है, तो मेरे लिए अपने लिए टाइम निकालना, दैट्स ऑल्सो अ डिफिकल्ट पार्ट. So these are where the barriers to mental health. And that's all from me into all this session. I hope it was somehow helpful to you people, and if you guys have any questions, please feel free to ask. Any student having any question, you may ask that. You can even post your question in the chat box. Chat box is open. Prolonged conflict affected the mental health of its inhabitants, particularly from a gender perspective. Indeed, it has, because see, if we say the way I also before also I said ki, like there are a lot of research has been done by Mushtaq Margoob Saab or the MSF, as I quoted, कि wherever you live in a whenever you live in a conflict zone, वहाँ की जो population होती है that is prone to mental health disorders or mental health stressors, because continuously वहाँ के हालात ठीक नहीं रहते हैं, वो on and off देखते रहते हैं, इतना bloodshed होता है, और कुछ certain encounters to traumatic events, traumatic episodes, और which are not normal situations, तो उसमें होता है ये. दूसरी चीज़ फिर होती है, women they are more confined to house, or they are more confined to small circles or spaces. They don't have much accessibility or availability to vent out or to channelize their traumas. ठीक है, उनका जो trauma या उनके जो ये so good happy experiences होते हैं, उनके लिए platforms बहुत कम होते हैं उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए. They don't unfortunately get that a proper professional platform to just navigate their stress or their mental health प्रॉब्लम्स, वो नहीं होता है. बिकॉज अगर आप देखें ना, वुमन ऑब्वियसली वी आर डिपेंडेंट ऑन आर मेल सबॉर्डिनेट parts. If I imagine, if I have seen somebody snatching my husband, taking him to some other place, and all this happened in front of me, and I was completely shattered, I couldn't do anything, or that somebody, अगर आप एक लिहाज से भी देखेंगे, sometimes जो भी गालियां होती है ना, जो भी whosoever is giving them, they are usually gendered. बाप बाई की गाली नहीं होती है, यहाँ पे ऑनर के साथ अटैच की जाती हैं गालियाँ भी, दे आर फीमेल ओरिएंटेड. ठीक है, अगर हमें किसी को वो देते हम, तो दैट इज टू द फीमेल, एंड वो सारी चीज़ें मेरे साथ अगर हुई हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू vent that out, because उसके साथ मेरा honor attached है. I can't express these things. Certain things has been happened to me, I'm been harassed, or all these unhappy experience have happened to me. I'm not able to say these things, because in Kashmir we're also saying कि नहीं वो ऐसे हो गया था उस time, we can't be saying this thing, because वो encounter या whatever the episode had happened, that happened to our home, but that should not directly affect you. You should not be directly saying these things out to your friends or to XYZ people, because that is gonna affect you how you live. So this is obviously वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज यहाँ पे वुमन के पास वो सेफ स्पेस की बात अगर हम करें, सेफ स्पेस जहाँ पे वो विदाउट बीइंग जजड, विदाउट बीइंग स्टीरियोटाइप्ड, अगर ऐसी कोई चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, नहीं है हमारे पास. एंड अगेन बात है, जब आप देखते हैं कंटिन्यूसली आपके पूरे कश्मीर में ऐसी अनड्यू सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, यू विल बी फीलिंग माई ब्रदर और सम अदर पीपल आर प्रोन टू सच स्टफ. एक और क्वेश्चन है सकीना का. सकीना जी पूछ रही हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन बच्चे ये ऐसा होता है कि जब हमारे पास फीमेल आती है, फीमेल का रिसेंटली हम मतलब बेबी उसने डिलीवर करा होता है, व्हाट हैपन्स टू हर, शी फील्स लाइक जो भी सारा अटेंशन है, जो भी ये कश्मीर में हम आते हैं मुबारकस वगैरह, वो ज़्यादातर बच्चे को हो रहा है, या केयर कंसर्न, स्पेशली पहले चाइल्ड में, फर्स्ट टाइम व्हेन शी हैज़ कंसीव्ड और डिलीवर्ड द चाइल्ड, शी फील्स कि सारा
अटेंशन, केयर, कंसर्न इसको दिया जा रहा है। लुक व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय बॉडी, आई वेंट थ्रू अ सीजर, अभी मेरा पेन भी सबसाइड नहीं हो रहा है, अभी कंटिन्यूअसली रो रहा है। शी फील्स एम आई बीन एबल, क्या मैं इसके साथ केयर को इसको दे सकती हूँ उतना केयर जितना मैं मुझे देना चाहिए। और शी फील्स ये तो शायद एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बच्चा, शायद मैं अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। वहाँ से उसको एक और चीज़ होती है, शी इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, स्लीप डिप्राइव्ड होती है। कुछ फीमेल्स की इमीडिएटली दांत या बाल झड़ने लगते हैं, या कोई उनको आता है उनके पास, उनको कहते हैं आपको तो पिगमेंटेशन हो गई है, जिसको बिजिन वगैरह भी कहते हैं। सो शी फील्स लाइक ओके थिंग्स हैव हैपेंड टू माय बॉडी, एंड ये बच्चा है, इसको तो मजे है, ये दुनिया में आया, थिंग्स हैव हैप्पीली ये एंजॉय कर रहा है। It takes a woman time sometimes, and it's not happening to every woman, we'll categorize it कि postpartum depression सबको हो रहा है, नहीं। It is one of its kind, ये किसी किसी को होता है कि she feels like अभी तो मैं young ही थी, female ही थी, अभी तो कुछ महीने ही थे शादी को हुए, अभी तो पहली एनिवर्सरी भी नहीं हुई शादी को, and now I'm a mother and it has taken all together, मेरे पास जो मेरे कपड़े हैं वो भी नहीं मेरे को फिट ऑन हो रहे हैं, या मुझे अब बोला जा रहा है ये मत खाओ, वो मत करो, ये करो, और बच्चा भी ठीक से नहीं रह रहा है, ये रात को जागता रहता है, ये कंटिन्यूसली रोता रहता है। शी इज नॉट एबल टू cope with all these things. So this is certain symptoms of postpartum, लेकिन it's completely curable है, ये कुछ टाइम के लिए रहता है, इसमें थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, it's completely fine. How to deal with a depressed person, especially when there is heat argument between normal person and the person who is suffering from the chronic depression. Wow, if you already know कि आगे वाला जो बंदा है कि इसको chronic depression है, और that person is suffering from one or the other mental health disorder, तो for me I have to understand ये इंसान deliberately ऐसा नहीं करता है, ठीक है। I should understand, एक लेवल आती है जब हम कोई भी नॉर्मल इंसान के साथ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, जब हमें लगता है कि ये आगे वाला जो बंदा है कि इसको हमारी बात समझ नहीं आ रही, और ये रैश हो रहा है, और इसकी टोन हाई हो रही है, या डिफेंसिव हो रहा है, या इसकी जो बॉडी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वो चेंज हो रहे हैं, देन वी हैव टू पॉज, वी हैव टू टेल देम टाइम आउट। I mean, I just want to pause this conversation. Can we please restart this conversation some other time? Right now, we need to pause. And always try to understand उस इंसान की triggers क्या है. What are the things that trigger him? अगर आपको उसको कोई चीज़ कन्वे करनी है, वो आप कैसे उसको कन्वे कर सकते हो? पहले उसको हमें कितना ना क्या कहते हैं उसको कंफर्टेबल जोन में लेना है, कंफर्ट जोन में लेना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड कोई बात करवानी है। बट व्हेन यू सी ये छोटी छोटी बात पे भी एग्रेवेट हो जाता है या हाइपर हो जाता है, तो वी हैव टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस, सेफ बाउंड्रीज विद दैट पर्सन। Can bipolar go away? See, my dear Sabia, bipolar can be managed. Okay, most of the mental health disorders we say they are being managed, managed by therapies, managed by whatever the counselor or whatever the therapists have told the person to do, वो उसको मैनेज हो सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास लगता है थेरेपेटिक इंटरवेंशन के साथ हमारे पास क्या कहते हैं इसको, दवाई का भी इंटरवेंशन, फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन भी लगता है। सो वी हैव टू सी कि सीवियरिटी क्या है केस की, एंड इज दैट पर्सन ऑन प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्या वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो प्रॉपर काउंसलिंग ले रहे हैं, इज ही ऑन द प्रॉपर फॉलो अप्स विद डॉक्टर्स और विद द कंसर्न थेरेपिस्ट, वो जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? Anyone else? Yes, Adil Bashir has posted another question, ma'am. Yeah. I'm just about to. Do cultural attitude stigmas in Kashmir affect the willingness of men and women to seek? Yes, of course, indeed, my brother. बिल्कुल इंतहाई जो हमारी जो कल्चरल एटीट्यूड्स जो होते हैं हमारे और जो स्टिग्मास है बहुत हद तक वो करते हैं। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि अगर मुझे ट्रीटमेंट सीख करना है कहीं मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, तो मुझे पहले बोलेंगे अच्छा तुम्हें अब जाना है, फिर वहां पे तुम्हें कोई देखेगा, वो बोलेगा हमारी बेटी ले रही है मेंटल हेल्थ के लिए दवाई वगैरह, तो वो दे विल बी लाइक जजिंग मी, अब शादी कौन करेगा मेरे से। दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स इन कश्मीर। चाहे कुछ नहीं हम कश्मीरी लोग करें, बट हमारी शादी होनी चाहिए। शादी कौन करेगा हमसे, रिस्पेक्ट ऑफ शुड वी सीक फर्स्ट आर ट्रीटमेंट और नॉट, वो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, बट हमारी जो सो कॉल्ड सोशल कॉन्स्टेंट में जो हमारी इज्जत होती है वो प्रायोरिटी है। सो आई टेल यू एन एग्जाम्पल।
जब आई स्टार्टेड माय करियर वेरी बैक, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, 2012 की बात है, जब मेंटल हेल्थ जो फैसिलिटी है हमारे पास, जिसको हम इम्हांस अब बोलते हैं, इम्हांस को हम पहले बोलते थे साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। जब ऑटो वाले भैया को बोलते थे ना यूनिवर्सिटी से हमें वहाँ जाना है या वहाँ काठी दरवाजे के पास, तो हम उसको बोलते थे साइकेट्रिक हॉस्पिटल ले जाओ। वो कहता था शक्कूर से क्या काम छे पागल खान, दीज आर एग्जैक्ट वर्ड, से क्या काम छे पागल खान। एनीवेज, एक तो वो एक्सपीरियंस, उसके बाद जब वहाँ पे आप देखते थे पेशेंट्स, पेशेंट्स के साथ क्या होता था, दे यूज्ड टू हैव प्रिस्क्रिप्शंस होते थे, मेल्स होते थे यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन के साथ, एंड दे यूज्ड टू हाइड द आइडेंटिटी, ये किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए होता, मेरा भाई कहता उसका नाम है जी रोमेसा है, उसकी एज है फलाना, ठीक है। एंड देन जो वो बंदा होता था, देन ही यूज्ड और शी ही यूज्ड मोस्टली सारे सिम्टम्स ना बताना डॉक्टर को। वो थे 2012 की बात। अभी की जो बात है, things have changed now, people are coming to mental health facilities, people are coming to nimhans. What do they do? It's like they hide themselves, they hide their faces like this, or they wear masks, ठीक है, they wear masks because they feel like if somebody knows, if somebody gets know कि मैं डिप्रेशन की दवाई ले रही हूँ, या मैं स्ट्रेस या मैं एंगर मैनेजमेंट के लिए यहाँ काउंसलिंग के लिए आती हूँ, people will be labeling me because in Kashmir we don't still have that ना, बहुत ही एक वैक्यूम अभी भी है मेंटल हेल्थ को समझने में। वी स्टिल हैव दैट लेबलिंग, ये आज पागल, ये पागल है, या इनके घर में ये बेटी या बेटा मेंटल हेल्थ की दवाई ले रहा है। क्योंकि हमें कश्मीर में वी पोक nose into each other's matters, we don't normalize still anything, like if I have stomach ache उसके लिए मैं पेंटॉप ले सकती हूँ, बट अगर मुझे कुछ और चीज़ है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, आई डोंट टेक दैट बिकॉज माई सोसाइटी इज़ वेरी जजमेंटल, they'll label me like this, and that stops me from availing any sort of treatment for my mental health. I hope you got my answer, Adil. Pleasure is all mine. If anyone has any other question, or if anyone wants to share something, their personal experiences, or how do they feel the scenario of mental health is in Kashmir, they are most welcome to do so. Ma'am, do we, ma'am, to me, I think there is Yeah. a dearth of these clinical psychologist professionals in Uh-huh. Kashmir. Yeah, yeah, Ma'am, do yeah. you agree I tell agree you with this? honestly, yes, yeah, yeah, yes, yeah, yeah. I do agree with you. You know what is happening in Kashmir these days? We have a trend कि everybody is become social activist, everybody is becoming journalist, everybody is becoming a therapist on social media, ठीक है? And then there is a war of interest, ठीक है? जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आज जी फलाना मैम है जी, ये थेरेपिस्ट है, बट इफ यू रियली गो एंड देन सी, इज शी रियली ऑथराइज्ड, इज शी अ लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट, ठीक है, वो बहुत ही हमारे पास कम है। देर इज अ जेरोक्स, देर इज अ सीडो प्रोफेशनलिज्म हो रहा है। somebody is doing a degree from some random university or from igno, and then posting a lot of things on social media, and then one fine day you see इसने तो क्लिनिक भी खोल रखा है, अच्छी बात है क्लिनिक भी खोल के रखा है, बट आर यू RCI रिकॉग्नाइज थेरेपिस्ट? वो इंपॉर्टेंट बात है। देर इज अ dearth of proper professionals. But I tell you something honestly, if you come to garment facilities, you will find people who are licensed to practice such things, okay? So all the time it's good sometimes to be motivated by somebody's video, but please go and do a research. I always talk about this thing कि वो इंसान कितना genuine है, वो इंसान कितना authentic है, उन चीज़ों में पहले आप लोग ये चीज़ें ज़रूरी देखिए before you seek a help, you seek a professional help or assistance from that therapist. Any further queries? Ma'am, can you please recommend some websites or any YouTube channels or anything which is Mm-hmm. authentic and meant for our strong mental health? I Anything, because can't. because there I. Mhm. there is a random Yeah. flow of information on the internet everywhere. Uh-huh. Yeah, Can you yeah, please yeah. cite some authentic sources from where we can have these things? I'll do one thing. I'll try to share this with the people who have organized all this. I'll be trying to do that first. फिर वो आप लोग से share कर लेंगे. That's a nice question. But I'll do a proper thing कि ताकि आप लोगों को भी benefit मिले. If I'm trying to give you some resources, they should be worthy for you people. Okay. Sure, ma'am. Yes, ma'am. Any student having any question, please, ma'am is here.
एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी थिंग यू वांट टू शेयर, मतलब जो मैम, आपको लगता है ये आपके साथ रिलेट कर पाता है? Adil Bashir has asked another question. अच्छा, What अच्छा, अच्छा, अच्छा। what role can legal मैम, आई हैव professionals? अनदर क्वेश्चन, बोल लो। Oh, wonderful. They can be ambassadors of mental health. They can be role models. क्योंकि देखिए आप अभी लोग बहुत यंग हैं, आप लोग अभी एडवोकेसी में हैं, बिकॉज व्हाट इज द जॉब ऑफ अ लॉयर? मेरे हिसाब से लॉयर का जॉब होता है एडवोकेसी करना। एडवोकेसी मीन्स फैसिलिटेट करना। यू गाइज आर इनटू स्टडिंग लॉ। आप लोग अपनी लेवल पे अगर आप लोग ना कुछ प्लेटफॉर्म्स या कुछ वर्कशॉप्स फिलहाल कुछ करवाएं कि वेयर यू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ इज, इसका ट्रीटमेंट सीख करना कितना ईजी है, यू कैन बी मेंटल हेल्थ गुड ना एम्बेसडर्स आप बन सकते हैं। एंड अदर देन दीज वर्कशॉप्स आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि एवरी टाइम यू फील सर्टन थिंग। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज है, कोई वीडियो आता है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई वीडियो है, वो जी आया है, उसका कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, वो शेयर होता है 10 और लोगों के साथ, ठीक है। सो इज इट राइट, इज इट राइट प्रैक्टिस डूइंग दैट थिंग? फिर आना पड़ता है मुझे, देन आई हैव टू जस्टिफाइड व्हाट दिस कंटेंट वाज अबाउट, बिकॉज in Kashmir we have this trend of not knowing the information fully, just having that incomplete information and then putting it on and then sharing and passing it on. So as you people being in law, you guys can facilitate, you can tell people what exactly is mental health, इसके symptoms क्या हो सकते हैं, और इसका फॉर एग्जांपल इसके लिए सेंसिटाइजेशन गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है। मेंटल हेल्थ एक्ट हमारे पास है, हमारे पास रैनावारी में फैसिलिटी है, हमारे पास एसएमएचएस में फैसिलिटी है, जेवीसी में फैसिलिटी है। इफ यू गाइज can just advocate your friend circle, and most importantly अगर आप पहले अपने फ्रेंड्स में ही देखोगे ना किसको हेल्प की ज़रूरत है, कि इफ़ यू आइडेंटिफाई सर्टन फ्रेंड्स कि हाँ जब मैंने बात करी कि बाल ऐसे से निकालना या कंटिन्यूसली रोना या कंटिन्यूसली मार्क्स यहाँ पे कट करना या अपना ये खाना, सो अगर आप लोग देखते हैं ना विद इन योर सर्कल, अगर दिस ऑल इज हैपनिंग यू हैव टू ब्रिंग दिस पर्सन टू द प्रॉपर फैसिलिटी, पहली बात। दूसरी चीज, विद इन योर फैमिली व्हाट यू कैन डू इट, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, राइट? within your family you have to also understand and observe your family, how your family interactions or interpersonal relations are with each other, ताकि एक दूसरे की जो mental health है वो affect ना हो। That can also play a very important role. But obviously there are platforms, obviously there are people जो एक close groups बनाते हैं या social service के लिए civil society groups बनाते हैं, especially from the people like you from law से या social sciences या social work से, जहाँ पे वो ऐसे ऐसे ग्रुप्स में नुक्कड़ नाटक करते हैं या अवेयरनेस के लिए बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं, कोई ऐसी कोई शायरी या पोएम्स लिखते हैं या कहीं पे कुछ स्टेज प्ले कर लिया पोलो व्यू में या कहीं पे, ताकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ चीज़ें क्या है। तो उस चीज के हवाले से आप लोग कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यू कैन डू सम रिसर्च ऑल्सो। ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर हमारे पास जी वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में इतने सारे भी फैसिलिटीज़ है 2 मिनट के लिए, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है 2 मिनट के लिए, उसको पढ़ें। फिर देखिए आपकी स्टेट में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अगर श्रीनगर की बात करें, तो वहाँ पे क्या वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है, यू कैन कम विद द फैक्ट्स। और आप आरटीआई कर सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स वगैरह आप जो यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास क्या रेशो है, हमारी पॉपुलेशन और हमारी साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स या क्या कहते हैं इनको, थेरेपिस्ट और काउंसलर्स का क्या रेशो है टू आर पॉपुलेशन, क्योंकि अभी कश्मीर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, उस हवाले से आप लोग बहुत काम कर सकते हैं। Ma'am, आई I think होप there is आदल a last question, ma'am, please. I think there is प्लीज lack प्लीज of एनी टाइम जी। हाँ जी। ma'am, I think there is lack of coordination between psychiatrists and these clinical psychologists in our valley, because I think the clinical these psychiatrists have taken the place of psychologists as well there, because mostly they treat these patients with medicine, and thus they ओके। leave little scope for this clinical psychology. ठीक ठीक Ma'am, ठीक। can you please explain this? Yeah, there can, we can to some extent I can partially I can say this thing, because what is it like, जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम वन डायमेंशनल नहीं होती है, प्रॉब्लम के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि समटाइम्स यहाँ से हमें पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है मैम जिससे मुझे जल्दी फर्क हो जाए, आप लोग प्लीज मुझे दवाई दो, प्लीज मुझे दवाई दो जिससे मुझे नींद आ जाए, या प्लीज मुझे दवाई दो, आई शुड बी एबल टू परफॉर्म इन एग्जाम या इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि उसको लगता है समटाइम जो थेरेपी वाला जो प्रोसीजर है इट्स टाइम कंज्यूमिंग, उसको लगता है मैं रोज रोज 15 दिन 10 दिन के बाद थेरेपीज के लिए नहीं आ सकता हूँ, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट वी आर मोर इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है। हमारा जो कम्युनिटी के लिए काम करना वो बहुत ही कम है, आई एम टॉकिंग अबाउट एट अ वेरी पर्सनल लेवल टू यू पीपल, क्योंकि व्हाट हैपन्स व्हेन इन एनी सोसाइटी
पैसा जो आता है ना, रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जब हम मेरे अंदर जब आएगा ना पैसा कमाने का, जब बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ जाएगा, तो मुझे ज़्यादा फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का वो गर्ज़ नहीं रहता है, ठीक है? उस टाइम क्या हो जाता है, मैं 10 टू 4 होती हूँ क्लिनिक में, गारमेंट फैसिलिटी जहाँ मैं देख रही होती हूँ, लेकिन वहाँ मैं अच्छे से नहीं देखती हूँ। फिर मैं उस बंदे को बोलती हूँ, ठीक है आप फलाना जगह आना, फलाना मेरे जगह पे क्लिनिक है। सो फिर वहाँ पे क्लिनिक पे मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ, मैं वहाँ पे दवाई देती हूँ, मैं अपनी थेरेपीज़ भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक अगर मैंने इसको यहाँ पे थेरेपी नहीं दी, ये प्रॉपर्ली थेरेपिस्ट के पास जाएगा, ठीक है? ये एक अम, काउंसलर के पास जाएगा, तो मेरी तो दुकान ठप हो जाएगी, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। So this happens because what is it in Kashmir? We people are very self-centered. We have become very self-centered, unfortunately, over the period of time, which we were not. This was not our genetic makeup because we used to contribute to the society in whatever possible manner we could have been doing. अभी क्या चीज़ है? अभी चीज़ है कि थेरेपिस्ट को लग रहा है मेरे को पकड़ना है पेशेंट को, इसको लगता है साइकियाट्रिस्ट को मुझे पकड़ना है पेशेंट को, बिकॉज एवरीबडी सीज हिम एज अ मनी मेकिंग कंटेंट, मनी मेकिंग सब्सटेंस, नॉट एज द पर्सन कि मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, मुझे इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज मैनेज करने हैं, सो दैट ही और शी शुड बी एटलीस्ट फंक्शनल टू द सोसाइटी। वो नहीं देखते हैं हम। Thank you, ma'am. Ma'am, there is one more issue, the वेलकम। kind of terrible situation we are facing right now in Kashmir. That is these social media influencers who are trying to present a perfect online image, kind of, which is unimaginable, sort of. And plus, रिजल्ट आता है 10th क्लास बच्चों के, 12th क्लास बच्चों के, इट गोज ऑल ओवर द मीडिया और ऑल ओवर द इंटरनेट, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिनके कम कम मार्क्स होते हैं। जैसे रिसेंटली कुलगाम में वो 12th क्लास बच्ची ने रिजल्ट पे सुसाइड करी। सो हाउ कैन वी एड्रेस दिस इशू, जो ये मुझे बिल्कुल, मुझे रिसेंटली बेहतरीन कंटेंट लगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, सोशल मीडिया से प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे लगता है उसका सोल्यूशन भी सोशल मीडिया पे ही आना चाहिए। मुझे बेहतरीन कंटेंट लगा आरजे विजदान का कंटेंट। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव सीन दैट कंटेंट कि नहीं। यस मैम। उन्होंने कंटेंट बनाया है, एग्जैक्टली वो उन्होंने मैट्रिक पे बनाया कंटेंट, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही कंटेंट हमें वापस चाहिए था टू क्लैश इट बैक, बिकॉज क्या है, अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया से आ रही है उसका जवाब भी वहीं से आना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची को इतना ना सोसाइटी ने पूरा प्रेशर किया होता है, रिलेटिव्स ने, हमारा हमने हम ना एज बड़े जो होते हैं, कजन्स या कजन सिस्टर्स या पेरेंट्स ने, कि ये शम्योन नूर, ये शम्योन जिगर, इसने तो अच्छे मार्क्स लाए हैं थ्रू आउट, या मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स लाएगी, अब इसको 10th है, ये तो बड़ा बड़ा स्टेज है। सो वी हैव क्रिएटेड अननेसेसरली प्रेशर्स ऑन द चाइल्ड साइकी। यार 16 ईयर बच्चा है वो, एंड डोंट टेल मी पीस ऑफ पेपर कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट द पोटेंशियल द चाइल्ड इज हैविंग, ठीक है? वो कोई भी पेपर जज नहीं कर सकता दुनिया का। एक घंटे का पेपर कैन नॉट जस्टिफाई वट एवर आई एम, हु आई एम। आई शुड नो हु एम आई, एंड माई पेरेंट्स एंड माई सोसाइटी एंड द पर्सन पीपल हु नो मी, दे शुड रेस्पेक्ट मी, दे शुड एक्सेप्ट मी द वे आई एम। वो बहुत जरूरी होता है। सो उसके लिए मुझे लगता है कि हम क्लैश कर सकते हैं, स्टॉपिंग एंड शेयरिंग, मेकिंग देम एज हीरोज, ठीक है? जो हम बहुत सारे वो बैनर्स वगैरह कोचिंग सेंटर्स बनाते हैं, या जो हम एज कश्मीरी सोसाइटी बहुत प्रेज लिखते हैं ना, फिर स्टेटस डालते हैं, माशाल्लाह माय कजन गॉट दिस परसेंटेज, अल्लाह ब्लेस यू। नो, यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन द मैसेज ऑन द फोन, बट डोंट हीरोइज्म जो है यहाँ पे, वो प्लीज कटल डाउन, उसको काम करे हीरोइज्म को। मुबारक को जाना है, बट इतना हाइप नहीं कि post in something we have to do it. Just I don't believe in such practices. थोड़ा उसको हीरो डाउन करे, उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को कम करे, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये अवेयरनेस क्रिएट करे कि पीस ऑफ पेपर, मार्क्स ऑन माय 10th ऑन 12th रिपोर्ट कार्ड आंट गोना जज मी। हैशटैग नहीं होता किसी चीज़ का, उस चीज़ का हैशटैग बनाए। आदिल बशीर has posted another question, मैम। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन इसके नीचे भी है कोई? एक सेकेंड। बस यही है लास्ट क्वेश्चन। आई बीइंग एन एडवोकेट। अच्छा, I've been and have been a part of numerous awareness वगैरह programs, but I think the collaboration between legal and mental health professionals is very important in coping with mental health issues बिल्कुल prevailing in masses. Can you give some ideas that legal professionals collab more effectively with mental health professionals to support? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने एक और एड ऑन बात बोली है कि हमें फिर कोलैब करना चाहिए। अब एक चीज़ है कि हमें कोलैब किन किन के साथ करना चाहिए। जला शाह, एक सेकेंड ना, सॉरी। नो इश्यूज मैम।
आई एम सॉरी। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी सवाल है। ये भी आप कोलैब्स भी आप कर सकते हैं। कोलैब्स आप किन के साथ करना चाहिए? सो देन वी शुड मेक अ लिस्ट, वी शुड हैव अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैसिलिटीज हु आर वर्किंग इन द डोमेन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है? पहले उनका लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमारे पास जीएमसी है, जैसे हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए फैसिलिटी है, निम्हांस है, या फॉर दैट मैटर जहाँ पे भी ये मेंटल हेल्थ एक्ट जहाँ पे ये ना चल रहा है, इन प्लेस है, ठीक है? उन लोगों के साथ हमारा एक प्रॉपर लाइजन होना चाहिए, प्रॉपर एक हमारा एक कोलैब उनके साथ होना चाहिए। बट अब बात आ रही है हाउ दे गोना एंटरटेन यू, बिकॉज आप लोग तो बच्चे हैं ना, आप लोग तो अभी यू आर जस्ट इन द प्रैक्टिस, लाइक अभी आपकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स फिर आप लोगों के पास एक प्रॉपर एक फर्म बनी चाहिए, या कुछ अपना ग्रुप बनना चाहिए जिसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या जिसकी एक प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि आप लोग एडवोकेसी करते हैं मेंटल हेल्थ की। उसके हिसाब से ही फिर आप लोगों को कोलैब, आप लोगों को यू हैव टू राइट लेटर्स टू दीज पीपल सो दैट they involve you, so that they engage you in lot of awareness and their camping programs to promote mental health. से सपोज अगर आप लोगों के पास कभी टाइम होता है इंटर्नशिप का, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है? मगर कोर्ट में इंटर्नशिप करने के बाद आपको कभी क्या टाइम मिलता है किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में, किसी गवर्नमेंट वाली इसमें ना फैसिलिटी में आने का और देखने का कि मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स कैसे ट्रीट होते हैं, या कैसे उनके उनके सिम्टम्स क्या है? कभी आप लोगों ने ऐसी कोई इंटर्नशिप्स करी हैं? दैट मीन्स इट्स एन हाई टाइम यू गाइज डू फर्स्ट इंटर्नशिप्स। वहाँ जब आपके साथ इंटर्नशिप्स बनेंगे, एंड देन यू विल हैव अ आइडिया ऑफ चैनलाइजिंग कि आप लोगों को ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज इफ दे सी देयर आर गुड स्टूडेंट्स, देयर आर गुड पीपल हु वांट टू वॉलंटियर, हु वांट टू कम टू फील्ड विजिट्स एंड टू डिफरेंट फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ कैंप्स लगते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ की नो हाउ दे उस जगह का, एंड एट द सेम टाइम राइटिंग लेटर्स टू दीज ऑफिशियल्स, ठीक है? जो जो जिस फैसिलिटी पे है या जिस जिस पोजिशन पे है, उनको लिखना कि दैट यू गाइज वांट टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, प्लीज गाइड अस। इफ देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स यू वांट टू बी अ पार्ट, वो चीज करें। और इफ यू नीड सम help in terms of advocacy, in terms of legal help, so we are there if there are certain things to be done for some particular facility, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा काम हो सकता है। बट आई बिलीव अभी आप लोगों की लेवल बहुत ही यंग है माशाल्लाह। आई फील लाइक कि आप लोगों को अभी थोड़ा विद इन योर सोसाइटी या विद इन अपने ग्रुप्स में देखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमेशा दे वांट टू सी इज दिस अ वैलिड ऑथेंटिक फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, और क्या मैं कहूँ एनजीओ, जिसके साथ हमें कोलैब करना चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इन कश्मीर, बिकॉज कश्मीर इज अगेन अ मतलब स्टेट विच इज कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन स्टेट। इट्स वेरी एम्बिग्यूअस। यहाँ पे चीज़ें इतनी इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल नहीं है, और गवर्नमेंट हर एक चीज़ फैसिलिटेट नहीं करेगी आपको जब तक आपको क्लीन चिट क्लियर ये ना देखे कि ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या आता है, कहाँ से आता है, हाउ डू दे ऑपरेट। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी क्वेश्चनिंग नहीं होती, तब तक ऑल दिस इज वेग। Ma'am, I think we should conclude it then. Thank you Thank so you much, so much. Adil. You are very. I just want to thank to all these students who have been very patient with me and listening to my presentation. I hope it was to some extent relevant था, and especially Adil, आप मुझे आए समझा बहुत काम करना चाहते हैं, but again I'm saying to you, अभी आप स्टूडेंट है, आई बिलीव यू शुड मोर गेट इनटू द रिसर्च ऑफ मेंटल हेल्थ सिनेरियोज इन कश्मीर एंड मीट पीपल, मोर पीपल हु आर वर्किंग इन द डोमेन ऑफ मेंटल हेल्थ। जैसे हमारे पास डॉक्टर अरशद है, या हमारे पास ये मकबूल साहब भी है, साइकेट्री के हेड। दे कैन गाइड यू इन अ बेटर पॉसिबल वे, because again you are guys are all most of the you are students here, so जहाँ पे हाई लेवल पे बात करने की, काम करने की जब बात आती है, कश्मीर में चीजें स्टेप वाइज लेती हैं। ऑल टुगेदर आप ऊपर गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कोलैब नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ बीन अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, काइंड ऑफ गवर्नमेंट नाउ, so I know how things work. I don't want to give any false hopes to anyone here, and I want to say Eid Mubarak to every one of you in advance, and I want you to guys to take good care of your mental health. अपनी भी mental health पे काम करे पहले, then you can be able to keep others happy. That was all from me. Thank you so much, ma'am, for such an outstanding presentation. The insightful remarks were truly illuminating, and we are deeply appreciative of the fact of the time you took to share this expertise with us. Pleasure. Thank you so much. Pleasure is